गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कल जब मैंने रेड रे चक्रा के बारे में किया था, तो मैंने उसे टुकड़ों में इंग्लिश में, टुकड़ों में हिंदी में पढ़ा था। तो आज मैं ये करने वाली हूँ। ये भी थोड़ा सा लंबा है, शायद 40-50 मिनट तक जाएगा। और इसको मैं पहले पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ लूँगी। उसके बाद जो मैंने गूगल ट्रांसलेट पे किया है, उसको पूरी तरह से हिंदी में पढ़ूँगी। तो जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में आ जाता है, उन्हें हिंदी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को हिंदी में सुनना है, वो इंग्लिश वाला फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं। ये आज का सेशन है लिविंग द लॉ ऑफ वन, चैप्टर 3 आई थिंक। इट इज़ अब चैप्टर 4, जो है हमारे रूट चक्र का ताल्लुक हमारी सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी को हिंदी में क्या हिंदी में क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ। सेक्सुअलिटी को अब सेक्स को तो संभोग कहते हैं, सेक्सुअलिटी को क्या बोलते हैं? कामुकता। तो रूट चक्र का ताल्लुक मतलब कि मूलाधार चक्र का ताल्लुक हमारे कामुकता के साथ क्या रिश्ता है, और क्या है, अच्छा है, बुरा है, देखते हैं क्या बोलती है। तो पहले तो कुओं कहते हैं। ये जो पहला वाला, हाँ, ये कुओं कुओं ने कहा है। जैसे कि हमेशा शुरू वो कुओं के एक फ्रेज से करती है, इसी तरह यहाँ पर कुओं का एक कोट है जो चैनलिंग में हुआ होगा, और वो कहते हैं, I will start in English, complete the whole session, and then in Hindi. The amount of sheer energy vibrating betwixt Earth and physical vehicle is astounding. Yet it cannot be acknowledged and used nearly so well by one who is working upon upper chakras unless that entity has the patience. Archangel Michael, please cover me in white light and in violet light. The humility and the determination to come into contact with that earth, that soil of self. Understand one thing, that root chakra is connected to Mother Earth. So, to keep that active is very important. And there's nothing wrong with it. That is something given by God, for God's sake. If God did not mean us to use it in the manner that He made it usable, why would He give it to us? Simple logic. I mean, for the sexual identity is as powerful and as unique a part of the individual spirit or soul as any other incarnationally expressed energy. This is the energy which creates a healthy mind, a healthy body, the energy that gives a primal yes to being. This is a primal, carnal, third density body. What do you expect? This is, moreover, as are all energies, a sacred energy. And the sexual intercourse is as the Eucharist of red ray, the holy communion of the body, holy communion of the male and the female energies, the divine masculine and the divine feminine, the Shiva and the Shakti, the Krishna and the Radha of the body. Shiva's Shakti in Tantra, or in it's also called as goddess Tara, and Tara is also called as मतलब there are different, ये अलग अलग रूप हैं. They are also called as Shmashan Devi. The rays or energy centers of the energy body are living entities which are constantly shifting in clarity, intensity of color, and rate of vibration. In appearance, all of the rays are described as being like flowers with their petals, or like crystals with their regular facets. The chakras have some qualities of both of these examples. The red ray,
the red root chakra, is the color of this red, bright red like a ruby. This is not ruby, but this is just a 100 रुपए का पत्थर, but it's that color. And सस्ता हो या महंगा, वो असर करता है उसको इस उंगली में, sorry, whether cheap or expensive, it has its effect. It is worn in this finger because this is the finger of earth, if I'm not wrong. And it changes color and it becomes energized as you wear it. Just saying. Okay, this is why I don't do this subject. I go into too much of detail. Um, the chakras have some qualities of both of these examples. These rays are equally important, none being better than another, because it is higher in the energy body. We need them all to be open and flowing. The red ray energy center is described by Ra as being the foundation ray, Mooladhara. It is the first ray of the energy body which receives the incoming light energy from the earth. The Creator radiates this light energy to the logos of our sun, which then create the first ray of the energy body which receives the incoming light energy from earth from below. The Creator radiates this light energy from our chakras to the logos of our sun, which then radiates the individuated light energy into the earth, which then radiates the light energy back to us. The energy flow from the Creator, the logos, sun, and earth enters the energy body at the red ray. The red ray energy is located where the legs join at the base of the spine. Tailbone. This center will not grow more complex in terms of how it looks and works than it is today, no matter how spiritually mature we become. So, Kundalini is at your tailbone, but the red ray center is between your legs on the point where you sit. Now, supposing you're sitting like this. So, what is the base you're sitting on? Touch that, and that is your root chakra. This center will not grow more complex in terms of how it looks and works than it is today, no matter how spirituality mature we become. Both the first and the last chakras, red ray and the violet ray, are readouts, up and down. The red ray is a starting readout of our vital and physical energy level. The violet ray is the exit readout of the status of the whole array of our rays, red through violet. The red ray is related to the protein that we eat, the inner chakras, orange, and the Sahasrara is connected to fasting. When you're fasting, you're activating your Sahasrara. The inner chakras, the between chakras, orange through indigo, orange, yellow, green, blue, indigo, are far more able to be developed by the seeker as he matures. The inner rays have a lot of room to grow in complexity as well as clarity. That is why the torus is a field which is like this. It is not like this. It grows from here to here. Okay, it's the torus field is like this. Because this and this doesn't grow, the rest of the chakras can expand as far as you want to the end of the universe. The inner rays have a lot of room to grow in complexity as well as clarity, color accuracy, and intensity. We may add petals to the flower as the energy of that ray within us matures and develops along regular patterns of increasing complexity. We may create ever more detailed facets within the crystalline structures of our rays as our energy becomes more skillfully directed by us in our daily play on the game board. The changes in our energy flow are caused by our reactions to incoming catalyst. Each thought which we entertain potentially can change our energy body's coloration and its state of openness. The color of each of our energy centers varies in a couple of different ways. All red ray energy centers, for instance, are red.
However, the intensity of that color may vary, as well as its clarity and its closeness to the true color, which is the exact vibration of the red ray which came with us from the factory at birth. These qualities of the colors vary because of the intensity, clarity, and accuracy of our thoughts and other energetic expenditures like actions and words. Actions and words and thoughts. This true color is also the vibration of the red ray of planet Earth and its energy. The closer our personal red ray vibration approaches the red ray vibration of first density, the more easily we can accept the Creator's energy as it comes into the energy body at the red ray. Although it doesn't really begin at the red ray, but that is one main chakra of your torso. The details of which you can learn in my basic chakra course if you wish. You can sign up for that. It is useful for the player to cultivate the connection between the human energy body and the planetary energy body, as well as the sameness of our earth of physicality and the earth whence we sprang. A rapid way that all of us can deepen the respect we have for ourselves as human beings of the tribe of humans on planet Earth is to allow ourselves to feel this energetic connection between our human bodies and the body of the Earth itself. Now you understand how we are so deeply connected with the Earth and the Sun. It that is why whatever we feel reflects back to earth. If we feel happy, the earth is happy. If we feel sad, the earth is sad. So, come what may in every situation. I mean, let me be very honest. When I fell down about 10 days back, I was like, oh, duck. I mean, I'm not a person to sit in one place, and I'm definitely not a person to sit idle. What will I do? But then I was like, okay, that onion wants me to sit in one place. I will sit. Fine. I mean, he wants me. I can't help it. It's a fracture, and my other knee is hurt, and my ankle is sprained. Fine, no problem. I will make the most of it. So in the morning, I do my yoga, and I'm working on uh, my body so that laying in bed, my back muscles don't get weak, and I remain fit, and I am doing my work along with some other work that I mean to do, and I'm making the most of it. That's what you're supposed to do. And not for a second am I angry or I mean, I'm frustrated a little bit, but the moment I start feeling the frustration, I simply tell myself, okay, enough. Back to being happy and back to being thankful for whatever. I mean, even that is part of God, the good and the bad. Whatever has happened, maybe it was part of my soul contract. Who knows? So, if it was not, then whether it was or whether it was not, you need to be happy in every moment and make the most of it. You cannot allow yourself to feel self pity, anger, um, sad, depression. That's the worst you can do to your any chakras. All the other chakras, of course, you will learn ahead. Picture in your mind the energy flowing up from the earth, up the feet and legs, through the red ray center, on its way upward through the energy body. Then picture intentionally linking back into planet Earth by sending in answering thankful energy back down your legs into the earth, creating energetic roots like a plant's. Now you understand when I do the meditations, why I always make you do grounding. This is why I make you do grounding. When we habitually enter our earth bodies with this visualization, if I want, I can avoid it. But the more we do it, the more all your chakras are balanced and the more you're grounded. And especially during meditation. That is the reason that I make sure that I make you do grounding every single time. When we habitually earth ground our energy bodies with this visualization, we will increase our sense of wellness and belonging. We really do belong to Mother Earth.
Our bodies are made of her material, earth, water, air, and she, as the living entity of Terra, Tara, Mother Earth, or Gaia. So, okay, वो बात बीच में रह गई. I was saying that this is what I have gathered from whatever I have read. I may be wrong. Please do your own research. But uh, Tara, if you see the thumbnail of this video, it is Ma Kali with Shiva. Now, Ma Kali in her Bhayankar form is Smashan Tara. She's called Smashan Tara. Now, Tara has many roop. She has many forms. When Shiva takes her in her embrace and she sits on her laps and hugs him with his hands cupping her breasts, at that time she is Devi Tara, not Smashan Tara, but only Tara. And that is revered in many cultures across the world. Now, living entity of Terra, terracotta, Tara, Mother Earth or Gaia, loves us unconditionally as her children. We can feel her love and strength as we root down into the earth, linking with the earth's red ray by visualization. The red ray density is the density of the elements and the powers, as the Native Americans call them. The chemical elements and the four magical elements or powers of air, water, fire, and earth. These are also associated with the four directions of east, west, north, and south. This earthly density wide red ray connection with the red ray of our individual energy bodies is the source of powerful natural resources for the player. Our combined physical and energetic bodies are the point of connection for much inner work which we can do by feeling our oneness with the earth on which we live and asking for her sacred elements and powers to make us stronger. The awareness of this connection to the elements and powers also opens the way to magical work we may wish to undertake later in the game. We shall talk more about this in the third book of the series, 103 Inner Work. I don't know which she continued. Did she complete it? Carla was not able to finish the series before her passing away, and this book was never published. Sad. Knowing that we are a part of the great dance of life, we can better enter into it with a sense of creating style and grace in our movements as we dance. Literally dance. That is why Shiva does Tandav, Nritya. That is why skipping, jumping, jogging, dance, Kathak, Bharatnatyam, all these things, Kathakali, all these things activate and balance a lot of chakras. That the red ray chakra is basically a read out does not mean that it is easy to keep the red ray open. Indeed, a lot of us get stuck with blockages at red ray, either because of our feelings about sexuality or our feelings about living on planet Earth. Sexuality and survival are the energies which the red ray center handles. Our most primal instincts reside in this chakra, survival chakra. We instinctually desire to procreate and preserve our species by red ray sexual congress. We instinctually desire to survive. I choose to discuss sexuality first of these two types of red ray energy because in lab tests, animals have repeatedly chosen to stimulate themselves sexually or take a substance like cocaine at the expense of eating, and as a result have suffered ill health or died. I saw a video about rats who were given cocaine in a cage and eventually they all died if they were alone in a cage. But if they were not, if they had company, a friend or a partner, they didn't even bother to touch cocaine and they survived, lived beautifully and healthy.
In 1990, study of the effects of cocaine, the Canadian author stated, in one experiment, three monkeys were put in cages where they were allowed to press only one of two levers, one producing an infusion of cocaine, the other producing food pellets every 15 minutes, the same rat thing and the monkey thing. During the eighth day experiment, all three monkeys chose cocaine almost exclusively. Even on trials where they did not choose cocaine, the monkeys did not press the food lever. The animals lost weight and displayed strange stereotyped behaviors. That's how bad cocaine is. In other experiments, monkeys and rats have self administered cocaine over periods of several days until they died of convulsions. Uh, about this, a footnote has been written. Bruce Alexander, Peaceful Measures, Canada's Way Out of the War on Drugs. Toronto, University of Toronto Press, 1990, Chapter 5, quoted in an article at this website about this cocaine thing. Moving ahead, in studies where sexual stimulation was offered to lab animals as an option to eating, results were similar. While with animals sickening and dying, and for the same reason, choosing the addicting substance instead of food, we can become addicted to sex. It's very important for you to understand this. Just as we can become addicted to other powerful substances that can change our brain chemistry. We as players seek to avoid addictions. We intend to allow our sexual feelings and energies to develop naturally as they occur, rather than allowing ourselves to become addicted to the expression of this powerful energy. Sex is a very, very powerful energy, and it is very easy to get addicted to it. But if you get addicted to it, you're going to harm yourself. There's no point in getting addicted. It will only block your chakra further. It may seem that the more sexual activity we have, the more open our red ray is, but in many cases, this is not so. Sexual addicts, either of pornography or of sexual relationships with another, actually create blockage at their red ray because they overactivate it with repetitive and artificially created desires. This is fairly common. Now, there is a difference. In Gita, it is written that you should only have intercourse, not sensuality, not sexuality, but intercourse when you plan to have a baby, which is like once in 3 years, 5 years, not otherwise. This is fairly common in our sexually provocative and explicit media environment. It is easy to move from experiencing our sexuality as a naturally arising desire to being stimulated by the media into an artificially created and insatiable sexual craving for more, more, and more. If our sexual energies are out for a while, cold, you don't feel it, you not doing it, the player will let them be out. He will allow his desire to flow naturally. At those times, letting red ray remain silent and without sexual expression is the way to keep the energy flowing through the red ray. We do not have to act sexually in order to have our red ray be open and happy. We simply need to accept the desires or lack of desires which our red ray offers us with a sense of their rightness. Even complete celibacy is no hindrance to having an open red ray chakra. If the celibate seeker affirms and is at peace with his or her sexuality, the sexual instinct is bred into the very bones of each of us. When all goes well with us and we come to the moment of sexual orgasm, we hopefully feel the immortal yes of James Joyce Molly's Bloom in this novel Ulysses, sounding through our inner thoughts and emotions. Ra says, in the green ray activated being, there is the potential for a direct and simple analogy of what you may call joy, the spiritual or metaphysical nature which exists in intelligent energy. This is a great aid to comprehension of a truer nature of beingness. To the Confederation,
the true nature of beingness is always the creator experiencing itself. Uh, Now, don't start saying that, okay, the creator in me wants to have sex every day and 4 times a day and wants to watch pornography. No, the creator will never behave like that. He will never want to do something that is artificial and cold. If you're having sex with 20 different people randomly, that is not the creator. That is your greed, that is your addiction. And it is also your insecurity, lack of self confidence, and lack of self esteem, and lack of self love. To confirm the sacred worth of sexuality is to open the red ray chakra and let the energy pour through. We need to affirm our physical sexuality. Readers, tighten your sphincters. Women, we just did a kegel, squeezing the walls of our vaginas. Men, you just have to squeeze your manhood from the inside and, of course, your buttocks. Was that not the beginning of a great feeling, ladies and gentlemen? Isn't that energy a grand asset to have in this life? Is it not a powerful thing to feel the pleasure of sexual contact? Especially, you can do that when you're feeling sexual, but you don't have the means to have sex, or you don't want to have sex, and you want to preserve your sexuality and your energy and activate your kundalini so it can rise up. That is what you do. It's called Vajroli Mudra and Sehjoli Mudra in yoga. I have been talking about this since Law of One, but I don't think many of you have paid attention. I also, in the Ra group, I had put a long written explanation of both these mudras for the man and woman. So I think for men it is Vajroli and for women it is Sehjoli. We need to realize that we are dealing with enormously powerful forces within ourselves as we work with the energy of sexuality. We are profoundly sexual creatures. This sexual drive is basic to our human nature. Whether we are glad of it or not, our sex drive will fill our thoughts and emotions with color and fire again and again throughout our lives, whether you like it or not. Unless, of course, if you become cold. It is easy and on one level correct to call this basic energy lust. However, when you use the word lust, we generally intend it judgmentally. And in this discussion of purely red ray sexuality, we specifically do not mean to invoke any judgment. At this basic level, we are not looking at the emotional viewpoint behind the feeling of desire. When there is an emotional viewpoint behind that lust, then it is not lust. We are simply looking at this energy as it naturally arises. As it naturally arises, we are told in the Bible, the Creator checked the system out and found that it was good. Indeed, it is the best kind of good. It is sacred. It is in a unified creation. All things are sacred. Sexual energy is, in and of itself, sacred, unless you're misusing it. We as humans usually ignore that sacred aspect or at least try to work around it from time to time, but we cannot take its sacredness away. If you want to know more about this sexuality, then there are two sessions that I have done with Rocky on Tantra, and I've said this 100 times and I'm repeating it for those who may not have heard this before or paid attention or seen those sessions. In Gupshup with Guinea, there are two sessions with Rocky which are about Tantra, as he's a Tantra healer. And there is a lot of things that he's mentioned in that. Now, sexuality and Tantra are, of course, related, but Tantra is not only about sexuality. Tantra is about balancing the five elements of your body, taking care of your food, the right food, uh, taking care of your breath work, and sleeping on time. And Tantra and sexuality begin with mantra and pranayam. It's not like Tantra karna hai to chalo bistar mein. No, it's not like that.
Tantra begins with mantra, mudra, breath work. Our bodies are sacred and the sexual energy they carry is sacred. In a creation made of unconditional love, that sacredness has the nature of love. We, as people carrying that energy in our bodies, have the ability to remember that this energy is sacred and to honor it. The potential of sex to become sacred in our actual experience is activated by remembering and honoring that sacredness in ourselves. Shiva Lingam, if you see the picture of this video, the thumbnail, that is what Shivalingam is. The Parvati's or Kali's yoni along around it when she sits on it, and the lingam as hard as stone and unmoving. Both of them unmoving. So one thing you have to remember in sacred sexuality is when they begin with the pose of the woman sitting in the lap of the man with the manhood inside her. Both of them only have to breathe, not move even a millimeter. No action, only breathing. Looking into each other's eyes and breathing. उसका एक तरीका है. There is a way to do it. You don't just do it like that. You can get in touch with Rocky. He teaches Tantra. So ask him if he'll teach it to you. Potential of sex is to become sacred in our actual experience is activated by remembering and honoring that sacredness in ourselves. If we have conquered our sexuality and our sensuality, our kundalini will rise up like this. Like this. Of course, it takes time. But the main thing is to conquer that feeling. That means not give in to that feeling, not get addicted to it. Because when the kundalini gets activated, you will go crazy with thoughts and feelings of wanting to have sex. That is the time to sit and meditate. Simply meditate and rise your energy up through your chakras. Sex is a source of pleasure and healing naturally built into the way our bodies work and into our earthly experience on the most fundamental of levels. What a generous creator to include such a freely available and inbuilt source of feeling good. Sexual play, with its intimacy and the free exchange of energies, is a gift indeed. And here, when she's talking of sexual play, she's talking about sensuality and romance. Physical intimacy, but not intercourse. The best and most fun things in life on this planet are free, to paraphrase the old song. At first glance, it would seem that there are reasons enough to honor and respect our sexuality. However, this is not generally the case. We often feel tense and uncomfortable with our sexuality. Why? Because that's how we've been programmed. Simple. Why don't animal feels shame or uncomfortable? They can have sex in the middle of the road. Dogs and cats can have sex in the middle of the road with thousands of people around. They don't feel embarrassed. They don't feel uncomfortable. They don't even wear clothes. We, over thousands of years, have been programmed to feel like that. And yet, as Kuo says, our sexuality is the earth and the soil of self. It is our roots and our beginning. We were all conceived as a result of the Creator granting life to the seed our fathers sowed within our mothers' wombs. Our very existence depends upon the natural function of the red race center. It is utterly natural. We need to find a peace with our sexuality. As players working strictly with the red ray chakra, our goal unless and until your red ray is balanced, there's no point moving upwards because the energy will not move upwards. So, first thing you need to do is ground yourself and open your red ray and balance it. As players working strictly with the red ray chakra, our goal in dealing with our sexuality is to release all concern we have about how we look or any other concern that constricts the natural flow of energy through red ray, how we look.
Today, social media, anywhere you go, any video you pick up, 95% of people, except for the men, uh, the women, all use makeup, dress up so well, and here I am sitting in my pajamas with zero makeup. And I'm absolutely comfortable. I've been doing it for a year. This is me. Why feel embarrassed of something that God made? Because God is perfect and God is perfection. So something that He made can never be imperfect. So why is this imperfect? I mean, sometimes I do feel like getting ready and looking better, but just saying. Instead, we need to focus upon enjoying the gift of our sexuality, staying with the simple, joyful gusto, brio, playfulness, and honest enjoyment of our sexuality is our concern as a player in terms of keeping our red ray centers open and flowing well. Last paragraph. This is a challenging thing to do for reasons which will become obvious later. As we discuss the workings of the orange ray chakra, for now, let us simply say that as players, we want to come into a really relaxed and affirming peace concerning ourselves as sexual beings. As players, we want to feel good about our sexuality. Our goal I'll tell you what I'm doing, is to keep that precious flow of energy going. When those sexual energies feel threatened, we lose our yes. We can easily react to sexual stimuli by shutting down the flow of vital energy through our energy bodies if we feel badly about our about our sexual being, about being sexual beings. It is a priority not to do that. Now, this activates your sexual chakra, and also this is the gap that I want to give between the English and the Hindi. I wish you can hear that. Okay, so just a example. Now I will begin. After this, she talks about. So first she spoke about red ray and sexuality. After that, tomorrow, Monday, she the section of the chapter talks about red ray and survival instinct. So now let's begin in हिंदी. अब हम हिंदी में शुरुआत करेंगे. तो बीच बीच में काफ़ी बातें बोल देती हूँ मैं, और मैंने ये इसलिए किया कि हिंदी वालों को इंतज़ार ना करना पड़े या इंग्लिश वालों को इंतज़ार ना करना पड़े, और बीच में थोड़ा म्यूज़िक चला दिया बिकॉज़ वो उसका ताल्लुक आपके रूट चक्र से था. तो नॉट रियली बट टू सम एक्सटेंट. अब हिंदी में शुरू करते हैं. पृथ्वी और भौतिक वाहन के बीच कंपन करने वाली सरासर ऊर्जा की मात्रा आश्चर्यजनक है. फिर भी ऊपरी चक्रों पर काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इसे इतनी अच्छी तरह से, ये कुओ बोल रहे हैं, इसे इतनी अच्छी तरह से स्वीकार और उपयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस इकाई में उस पृथ्वी के संपर्क में आने के लिए धैर्य, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ना हो. खुद की वो मिट्टी, क्योंकि यौन पहचान, खुद की वो मिट्टी मतलब वो आपकी एक तरह से मिट्टी है, आपका आधार है. क्योंकि यौन पहचान किसी भी अन्य अवतारी रूप से व्यक्त ऊर्जा की तरह ही व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा का उतना ही शक्तिशाली और अद्वितीय हिस्सा है. यौन पहचान मतलब कामुकता की, आपके कामुकता की पहचान. यह वह ऊर्जा है जो स्वस्थ दिमाग या स्वस्थ शरीर का निर्माण करती है. वह ऊर्जा जो अस्तित्व को प्रारंभिक हाँ देती है. इसके अलावा
ये सभी ऊर्जाओं की तरह एक पवित्र ऊर्जा है और संभोग लाल किरण के यूचरिस्ट यूचरिस्ट संभोग लाल किरण की यूचरिस्ट है। अभी यूचरिस्ट क्या होता है इनको भी नहीं पता। शरीर के पवित्र भोज के समान है। यूचरिस्ट में देखूं क्या होता है। यूचरिस्ट मीनिंग, यूचरिस्ट का मतलब है कॉन्सिक्रेटेड एलिमेंट्स, मतलब जिसको पवित्र किया गया है, जिसको पवित्र किया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब के जो संभोग है वो इस संभोग करना, ये लाल किरण ऊर्जा या लाल किरण चक्र का को पवित्र करता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज लगे रहो, इसका आगे सुनो कि वो क्या कह रहा है। ये ऐसा नहीं है जैसा, मतलब लोग तो बोलेंगे कि हाँ हाँ अब तो ग्रीन सिग्नल मिल गया कुछ भी करो। ऐसा नहीं है। शरीर के पवित्र भोज के समान है। यह मिलन पृथ्वी और आकाश की एकता, नर और मादा की एकता और पहुंचने और प्रतीक्षा करने की एकता को दोहराता है। ये कुओं ने कहा है। और जैसे वो कहते हैं नर और मादा, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, आपका पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी आपके मन की नहीं, शरीर की बात कर रही हूं। और शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर का एक होने के समान है। ऊर्जा शरीर की किरणों या ऊर्जा केंद्र जीवित संस्थाएं हैं जो लगातार स्पष्टता, रंग की तीव्रता और कंपन की दर में बदलाव कर रही है। दिखने में सभी किरणों को फूलों की तरह उनकी पंखुड़ियों के साथ या क्रिस्टल की तरह उनके नियमित पहलुओं के साथ वर्णित किया गया है। कमल के फूल या ये रंग। चक्रों में इन दोनों उदाहरणों के कुछ गुण हैं। ये किरणें समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, कोई भी दूसरी से बेहतर नहीं है क्योंकि यह ऊर्जा शरीर में उच्च है। हमें उन सभी की आवश्यकता है कि इन सभी किरणें और ऊर्जा चक्र खुले और बहते हुए रहें और संतुलित रहें। लाल किरण ऊर्जा को रा समूह द्वारा नीव किरण के रूप में वर्णित किया गया है। यह ऊर्जा शरीर की पहली किरण है जो पृथ्वी से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करती है। निर्माता इस प्रकाश ऊर्जा को हमारे सूर्य के लोगों तक विकीर्ण करता है, जो फिर व्यक्तिगत प्रकाश ऊर्जा को पृथ्वी पर विकीर्ण करता है, जो फिर हमें प्रकाश ऊर्जा विकिरित करती है। निर्माता लोगों सूर्य और पृथ्वी से ऊर्जा प्रवाह लाल किरण पर ऊर्जा शरीर में प्रवेश करता है। लाल किरण ऊर्जा केंद्र वह स्थिति होता है जहां पर रीढ़ की हड्डी के आधार पर जुड़ते हैं। लाल किरण ऊर्जा केंद्र वहां स्थित होता है जहां ये दोनों पैर जुड़ते हैं। रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है उसके नीचे जिस बिंदु पर आप इस समय कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सीधे जब आप बैठते हैं तो वो बिंदु जो आपके नीचे है वहां पर, चाहे हम आध्यात्मिक रूप से कितने ही परिपक्व क्यों ना हो जाएं, यह केंद्र दिखने और काम करने के तरीके के मामले में आज की तुलना में अधिक जटिल नहीं होगा। पहले और आखिरी दोनों चक्र लाल किरण और बैंगनी रीड आउट हैं, मतलब के ये अब ऊर्जा की किरणों को की चमक को दर्शाते हैं कि आपके बाकी के सारे चक्र कितने बैलेंस्ड हैं। लाल किरण हमारे महत्वपूर्ण और भौतिक ऊर्जा स्तरों का प्रारंभिक विवरण है। बैंगनी किरण हमारी किरणों की पूरी श्रृंखला की स्थिति का निकास रीड आउट है। लाल से बैंगनी तक आंतरिक चक्र नारंगी, पीला, हरा, नीला और गहरा नीला साधक के परिपक्व होने पर विकसित होने में कहीं अधिक सक्षम है। ये दिन का आसमानी नीला है और ये मध्य रात्रि का आसमानी नीला है। आंतरिक किरणों में जटिलता के साथ साथ स्पष्टता, रंग सटीकता और तीव्रता बढ़ने की बहुत गुंजाइश होती है। हम फूल में पंखुड़ियां
जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर उस किरण की ऊर्जा बढ़ती जटिलता के नियमित पैटर्न के साथ परिपक्व और विकसित होती है। हम अपनी किरणों की क्रिस्टलीय संचारणाओं के भीतर और अधिक विस्तृत पहलू बना सकते हैं, क्योंकि गेम बोर्ड पर हमारे दैनिक खेल में हमारी ऊर्जा अधिक कुशलता से निर्देशित हो जाती है। हमारी ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन आने वाले उत्प्रेरक के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। प्रत्येक विचार जिसे हम संभावित रूप से मानते हैं, वह हमारे ऊर्जा शरीर के रंग और उसके खुलेपन की स्थिति को बदल सकता है। आप लोगों को यह भी बता दूं कि मैं चक्रों का एक कोर्स करती हूं। इसके अंदर जो बताया है कि आपका मूलाधार चक्र धरती से जो ऊर्जा खींचता है और यहाँ से वो निकलती है वगैरह। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कोर्स में बताई गई हैं और जिसका इन चक्रों से ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आप वो कोर्स करना चाहें। हमारे प्रत्येक ऊर्जा केंद्र का रंग कुछ अलग अलग तरीकों से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, सभी लाल किरण ऊर्जा केंद्र लाल हैं। हालांकि उस रंग की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, साथ ही उसकी स्पष्टता और असली रंग से उसकी निकटता भी भिन्न हो सकती है, जो कि लाल किरण का सटीक कंपन है जो जन्म के समय कारखाने में हमारे साथ आया था। रंगों के ये गुण हमारे विचारों की तीव्रता, स्पष्टता, सटीकता और कार्यों और शब्दों जैसे अन्य ऊर्जावान व्ययों के कारण भिन्न होते हैं। यह असली रंग इसका असली रंग पृथ्वी ग्रह की लाल किरण और उसकी ऊर्जा का कंपन भी है। जितना करीब हमारा व्यक्तिगत लाल किरण कंपन पहले घनत्व के लाल किरण कंपन के करीब पहुंचता है, उतनी ही आसानी से हम निर्माता की ऊर्जा को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह लाल किरण पर ऊर्जा शरीर में आती है। यह खिलाड़ी के लिए मानव ऊर्जा शरीर और ग्रहीय ऊर्जा शरीर के साथ साथ हमारी भौतिकता की पृथ्वी और उस पृथ्वी जहां से हम पैदा हुए हैं की समानता के बीच संबंध विकसित करने के लिए उपयोगी है। पृथ्वी ग्रह पर मानव जनजाति के मानव होने के नाते हम सभी अपने प्रति सम्मान को गहरा करने का एक त्वरित तरीका यह है कि हम स्वयं को एक दूसरे के बीच इस ऊर्जावान संबंध को महसूस करने की अनुमति दें। हमारे मानव शरीर और स्वयं पृथ्वी का शरीर, मतलब के धरती के बीच और हमारे शरीर के बीच ऊर्जा के इस संबंध को महसूस करने की अनुमति दें। अपने मन में कल्पना करें कि ऊर्जा पृथ्वी से पैरों और टांगों तक और लाल किरण केंद्र से ऊर्जा शरीर के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी वजह से मैं जब मेडिटेशन करवाती हूँ तो धरती के साथ आप लोगों का संबंध, ग्राउंडिंग, अर्थिंग जुड़वाती हूँ, क्योंकि उससे हमारे एक तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो भी है वो बैलेंस होता है। वो मुझे कभी याद नहीं रहता, पर वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होते हैं मेरे ख्याल से, और वो ज़रूरी होते हैं। और दूसरा, उससे हमारा जब धरती के साथ कनेक्शन जुड़ता है तो सूर्य के साथ जब हम ईश्वर की ओर जाते हैं तो सूर्य हमारा पिता है, तो धरती हमारी माता है, तो माता से पिता की ओर हमारा ये कनेक्शन जोड़ने में आसानी होती है। और फिर पिता के साथ जुड़ने के बाद पिता जो हमें ऊर्जा देता है वो हमारे द्वारा दोबारा धरती के अंदर जाता है। तब जाके हमारे, अगर ये आदान प्रदान रेगुलर होता रहेगा और हम करते रहेंगे तो हमारे चक्र जो हैं वो संतुलित रहेंगे। फिर जानबूझकर एक उत्तर देने वाली आभारी ऊर्जा को हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी पर भेजकर एक पौधे की तरह ऊर्जावान जड़ें बनाते हुए जानबूझकर ग्रह पृथ्वी से जुड़ने की कल्पना करें। यही मैं मेडिटेशन में करवाती हूँ। जब हम आदतन अपने ऊर्जा निकायों को इससे पृथ्वी करते हैं, विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करने में हम अपने कल्याण और संबंधित होने की भावना को बढ़ाते हैं।
हम वास्तव में धरती माता के हैं। हमारे शरीर उसकी सामग्री से बने हैं और वह टेराकोटा, टेरा, तारा, टेरा, तारा, तारामती, तारा देवी, ग्रीन तारा, तारा को श्मशान तारा भी एक उसका रूप है। ये जो वीडियो का जो फोटो उसके ऊपर लगा हुआ है वो मेरे ख्याल से श्मशान तारा का है, या कामाख्या देवी, मतलब शिवलिंग दुनिया में इतने सारे हैं, लेकिन कामाख्या देवी जहां पर देवी का की योनि खुली है और उसमें से रक्त बह रहा है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है। और उस कामाख्या देवी, योनि, शिव शक्ति, इन सब का ताल्लुक हमारे रूट चक्र से है, तंत्र से है। तंत्र का ताल्लुक हमारी कामुकता से है। और सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को है कि तंत्र का ताल्लुक सिर्फ कामुकता से है, नहीं। तंत्र की शुरुआत मंत्र और प्राणायाम से होती है, मुद्रा से होती है, आपके खान पान से होती है, सात्विक भोजन से होती है। आपका खान पान, प्राणायाम, मुद्रा, आपके प्राणायाम, ब्रेथवर्क, और उसके बाद प्रेम से होती है, उससे इसका कनेक्शन है। और तंत्र का मतलब है शिव और शक्ति का मिलन, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि जितने दुनिया में जो, अब कैसे बोलूं, क्या बोलते हैं उसको, हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जो जन्म से ऐसे होते हैं जिनमें दोनों लिंग होते हैं। अब ऐसे कोई होते हैं कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, ये भी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि एक शरीर में, इसीलिए हिजड़ों को पूजा जाता है। हमारी समाज में बहुत अफसोस की बात है कि उनको त्याग देते हैं क्योंकि वो समाज में अपनाए नहीं जाते। लेकिन अगर उनमें लिंग के दोनों, मतलब के स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दोनों हिस्से हैं, तो एक तरह से वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। तो उनको इस तरह से निकाल क्यों दिया जाता है समाज से? अफसोस की बात है। अब वो ऐसा है कि नहीं, ये भी मेरी धारणा है, इसमें नहीं लिखा। तो मैं अपनी सोच के हिसाब से बोल रही हूं। आप अपनी सोच और अपनी पढ़ाई लिखाई रिसर्च के हिसाब से आप देख लेना। तंत्र हमारी शरीर के अंदर जो शारीरिक ध्रुवीकरण है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ध्रुवीकरण शरीर का, मतलब कि चुंबकीय शक्ति, हमारे शरीर की जो इस तरफ की चुंबकीय शक्ति है वो पॉजिटिव है और इस तरफ की जो है वो नेगेटिव है। मतलब ये नर है, ये मादा है, इसीलिए अर्धनारीश्वर को इस तरह जताया गया है। इसका मतलब आपकी जिंदगी, एक औरत की जिंदगी के सारे नर के साथ रिश्ते और अपनी मादा शक्ति, अपनी शक्ति के साथ रिश्ता इस तरफ है, नर के साथ रिश्तों का असर इस तरफ है। अपनी मैस्कुलिनिटी, डिवाइन मैस्कुलिनिटी और डिवाइन फेमिनिटी हमारे शरीर में ऐसे है, आदमियों के लिए भी ऐसा ही है। हमारे शरीर उसकी सामग्री से बने हैं और वह टेरा, मदर अर्थ या गाइया के जीवन इकाई के रूप में हमें, हमारी गौ माता को गैया बोलते थे ना कृष्ण, गैया, गाइया, कुछ रिश्ता समझ में आ रहा है कि जीवित इकाई के रूप में हमें अपने बच्चों के रूप में बिना शर्त प्यार करती है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसके प्रेम और शक्ति को महसूस कर सकते हैं, कल्पना द्वारा पृथ्वी की लाल किरण से जुड़ सकते हैं।
लाल किरण घनत्व तत्वों और शक्तियों का घनत्व है, जैसा कि मूल अमेरिकी उन्हें कहते हैं। मूल अमेरिकी मतलब नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिकन इंडियंस जो मैक्सिकन्स जो हुआ करते थे या होते हैं, तो मूल अमेरिकी उन्हें कहते हैं रासायनिक तत्व और 4 जादुई तत्व या वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी की शक्तियां। इनका संबंध पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं से भी है। हमारे व्यक्तिगत ऊर्जा निकायों की लाल किरण के साथ यह सांसारिक घनत्व व्यापी लाल किरण संबंध खिलाड़ी के लिए शक्तिशाली प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। हमारे संयुक्त भौतिक और ऊर्जावान शरीर बहुत से आंतरिक कार्यों के लिए संबंध का बिंदु है, जिसे हम उस पृथ्वी के साथ अपनी एकता महसूस करके कर सकते हैं जिस पर हम रहते हैं, और हमें मजबूत बनाने के लिए उसके पवित्र तत्वों और शक्तियों की मांग कर सकते हैं। तत्वों के साथ इस संबंध के बारे में जागरूकता और शक्तियां जादुई कार्य का रास्ता भी खोलती हैं, जिसे हम बाद में खेल में करना चाहेंगे, मतलब उसे अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहेंगे। हम इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक 103 द इनर वर्क, जो कार्ला कभी पूरी नहीं कर पाई इसलिए वो कभी छपी नहीं, में इसके बारे में अधिक बात करेंगे। यह जानते हुए कि हम जीवन के महान नृत्य का हिस्सा हैं, हम अपने अंदर शैली और अनुग्रह पैदा करने की भावना के साथ बेहतर ढंग से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि हम नृत्य करते हैं, हरकतें होती हैं, नृत्य की हरकतें होती हैं। नृत्य करना, जॉगिंग करना, स्किपिंग करना, इससे आपके काफ़ी सारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते हैं और बैलेंस होते हैं। इसलिए नृत्य खास करके यूं कह लो कि जो फोक डांसेस होते हैं, कथकली हो गया, भांगड़ा हो गया, स्पेनिश चाचा चा हो गया, मैक्सिकन डांस हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये सारे नृत्य जो होते हैं ये आपके काफ़ी सारे चक्रों को बैलेंस करते हैं। इसलिए नृत्य करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। जैसे कि इससे पहले मैंने संगीत की बात की थी, उसके बारे में भी शायद आगे बताएगी कार्ला। यहाँ पर उसने वो उस नृत्य की बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। लाल किरण चक्र मूल रूप से एक रीड आउट है। इसका मतलब यह नहीं कि लाल किरण को खुला रखना आसान है। दरअसल हम में से बहुत से लोग या तो कामुकता के बारे में, हमारी भावनाओं, या पृथ्वी ग्रह पर रहने के बारे में हमारी भावनाओं के कारण लाल किरण में रुकावटों से फंस जाते हैं। कामुकता और उत्तरजीविता वे ऊर्जाएं हैं जिन्हें लाल किरण केंद्र संभालता है। हमारी सबसे मौलिक प्रवृत्ति इसी चक्र में निवास करती है। हम सहज रूप से लाल किरण यौन संबंध द्वारा अपनी प्रजाति को पैदा करने और संरक्षित करने की इच्छा रखते हैं। हम सहज रूप से जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। मैंने इन 2 प्रकार की लाल किरण ऊर्जाओं में से सबसे पहले कामुकता पर चर्चा करना चुना, क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षणों में जानवरों ने बार बार खुद को यौन रूप से उत्तेजित करने के लिए चुना है, या खाने की कीमत पर कोकेन जैसा पदार्थ लेते हैं जानवर, और परिणाम स्वरूप बीमार पड़ के मर गए। 1990 में कोकीन की प्रभावों के अध्ययन में कनाडा के लेखक ने कहा, इसमें कौन से लेखक ने क्या कहा आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ। वो फुटनोट में लिखा है, ब्रूस अलेक्जेंडर ने पीसफुल मेजर्स कैनेडाज वे आउट ऑफ द ड्रग ऑन वॉर, इसके बारे में टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस में चैप्टर 5 में इस पर एक आर्टिकल लिखा था, और उसके अंदर ये बताया गया कि एक प्रयोग में 3 बंदरों को पिंजरों में रखा गया था, जहां उन्हें हर 15 मिनट में अकेले अकेले रखा गया था। लीवरों में से केवल एक को दबाने की अनुमति दी गई थी। एक लीवर को कोकेन पैदा करता था, दूसरा लीवर जो भोजन के गोले पैदा करता था, तीसरे का नहीं बताया। 8 दिवसीय प्रयोग के दौरान तीनों बंदरों ने लगभग विशेष रूप से कोकेन को चुना। यहाँ तक कि उन परीक्षणों में भी जहाँ उन्होंने कोकेन नहीं चुना, बंदरों ने भोजन लीवर नहीं दबाया। जानवरों का वजन कम हो गया और उन्होंने अजीब घिसे पिटे व्यवहार प्रदर्शित किए। घिसे पिटे नहीं, बट बहुत ही
अजीब से व्यवहार प्रदर्शित किए, क्योंकि कोकेन पीने के बाद जिस तरह से इंसान व्यवहार करता है ऐसे उल जलूल। अन्य प्रयोगों में बंदरों और चूहों को कई दिनों तक स्व प्रशासित कोकीन दी गई, जब तक कि वे ऐंठन से मर नहीं गए। पता नहीं लोग कोकेन क्यों करते हैं। उन अध्ययनों में जहां लैब जानवरों को खाने के विकल्प के रूप में यौन उत्तेजना की पेशकश की गई थी, परिणाम समान थे परिणाम समान थे। जानवर बीमार हो रहे थे और मर रहे थे। उसी कारण से भोजन के बजाय नशे की लत वाले पदार्थ को चुनना। हम सेक्स के आदी हो सकते हैं। सेक्स एक एडिक्शन है, आदी हो जाते हैं हम। ठीक वैसे ही जैसे हम अन्य शक्तिशाली पदार्थों के आदी हो जाते हैं और हमें जो हमारे मस्तिष्क रसायन को बदल देती हैं। हम खिलाड़ी के रूप में व्यसनों से बचना चाहते हैं। हम अपनी यौन भावनाओं और ऊर्जाओं को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहते हैं, न कि खुद को इस शक्तिशाली ऊर्जा की अभिव्यक्ति का आदी बनने देना चाहते हैं। ऐसा लग सकता है कि हम जितनी अधिक यौन गतिविधि करेंगे, हमारी लाल किरण उतनी ही अधिक खुली होगी, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं है। यौन व्यसनी, चाहे वह अश्लील साहित्य का हो या किसी अन्य के साथ यौन संबंधों का, वास्तव में उनकी लाल किरण में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि वे इसे दोहराव और कृत्रिम रूप से निर्मित इच्छाओं के साथ अति सक्रिय करते हैं। अरे बाप रे, पा के साथ मीटिंग है। यह हमारी कहा गया, यह हमारे यौन उत्तेजक और स्पष्ट मीडिया परिवेश में काफी आम है। हमारी कामुकता को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली इच्छा के रूप में अनुभव करने से लेकर मीडिया द्वारा उत्तेजित होने तक कृत्रिम रूप से निर्मित और अधिक के लिए अतृप्त यौन लालसा में बदलना आसान है। यदि हमारी यौन ऊर्जा कुछ समय के लिए बाहर हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है, तो खिलाड़ी उन्हें बाहर होने देगा, मतलब उसके बारे में सोचना छोड़ देगा। वह अपनी इच्छा को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने देगा। उस समय लाल किरण को मौन रहना। आई सेंड यू लव एंड लाइट। अच्छी खासी थी मैं सुबह से। लाल किरण को मौन रहना और यौन अभिव्यक्ति के बिना लाल किरण के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित रखने का तरीका है। हमें अपनी लाल किरण को खुला और खुश रखने के लिए यौन व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन इच्छाओं की कमी को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो हमारी लाल किरण हमें उनके सही होने की भावना के साथ प्रदान करती है। यहाँ तक कि वैसे मैं बोलना भूल गई थी जब मैं कामाख्या देवी और शिवलिंग की बात कर रही थी। मेरे हिसाब से जब तक आप कामाख्या देवी का जाप और मंदिर में दर्शन नहीं करते, सिर्फ शिवलिंग की पूजा, आपकी पूजा अधूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी नहीं गई हूं कभी आज तक। और कामाख्या देवी का वहां जाए बिना उसकी पूजा करने का तरीका ये है कि जब आपकी पत्नी मासिक धर्म में हो, तब आप उसकी योनि की पूजा करें। उसका भी एक तरीका होता है पूजा करने का। यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्मचर्य भी खुले लाल किरण चक्र के लिए कोई बाधा नहीं है, यदि ब्रह्मचारी साधक पुष्टि करता है और अपनी कामुकता के साथ शांति रखता है। यौन प्रवृत्ति हम में से प्रत्येक की हड्डियों में पैदा होती है, मतलब हमारे कण कण में वास करती है जन्म से। जब हमारे साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और हम यौन संभोग के क्षण में आते हैं, तो हम आशा करते हैं कि जेम्स जॉयस के मॉली ब्लूम के उपन्यास यूलिसिस में मतलब वो अमर हाँ को हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। मतलब कि ईश्वर की तरफ से हाँ, एक तरह से इमॉर्टल यस। रा कहते हैं
रा कहते हैं। हरी किरण सक्रिय सत्ता में, जिसे आप आनंद कह सकते हैं, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक प्रकृति जो बुद्धिमान ऊर्जा में मौजूद है कि प्रत्यक्ष और सरल एनालॉग की क्षमता है। यह अस्तित्व की सच्ची प्रकृति को समझने में एक बड़ी सहायता है। परिसंघ के लिए अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति हमेशा स्वयं को अनुभव करने वाला निर्माता है। कामुकता के पवित्र मूल्य की पुष्टि करने के बाद लाल किरण चक्र को खोलना और ऊर्जा को प्रवाहित होने देना है। हमें अपना, मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पा के साथ क्यूएनए है। हमें अपनी शारीरिक कामुकता की पुष्टि करने के की आवश्यकता है। पाठकों अपने स्फिंक्टर्स को कस लें। अपने स्फिंक्टर्स को कस लें का मतलब है आपका मूलाधार चक्र, जहां आपकी बम है, आपकी एस, आपका सामने का हिस्सा, औरतों के लिए उनकी योनि और मर्दों के लिए उनका लिंग। उस हिस्से को जहां से आप पैखाना करते हैं या पेशाब करते हैं, उसको कस लें। जैसे औरतों को डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी में वो एक्सरसाइज दी जाती है, पेल्विक एक्सरसाइज, जिससे आपको कसना है, रिलीज करना है, कसना है, रिलीज करना है। ये सांस के साथ एक तरह से करना होता है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपको क्या करना है, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या करना है, उस तरह से। योग शास्त्र में और तंत्र में इसे वज्रोली और सहजोली मुद्रा कहा जाता है। उसके साथ एक मंत्र होता है, मुद्रा होती है करने वाली, इस तरह से होता है। पाठकों अपने स्फिंक्टर्स को कस लें। महिलाएं, हमने अभी अभी आपकी योनि की दीवारों को निचोड़ते हुए एक कैगल किया है। पुरुषों, आपने अभी अभी अपनी मर्दानगी को निचोड़ा है अंदर की तरफ। देवियों और सज्जनों, क्या यह एक महान भावना की शुरुआत नहीं थी? कैगल का मतलब है कि आपकी योनि को कसने के लिए कुछ चीजें, उपकरण बनाए जाते हैं। क्रिस्टल के छोटे छोटे बॉल होते हैं जिसे आप, जिसके आगे एक धागा होता है जिसको आप अंदर डालते हो, और वो गिरना नहीं चाहिए, आपको उसे कस के रखना है। तो आपको अपनी योनि को तब तक कस के रखना है जब तक वो अंदर है। वो अंदर डाल के आपको चलना है, बैठना है, उठना है, खाना है, पीना है, जितनी देर तक आप कर सकते हो। ये एक पेल्विक एक्सरसाइज है जो बहुत लोग करते हैं। डार्क शेड्स ऑफ ग्रे, 50 शेड्स ऑफ डार्क, नहीं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे पार्ट 2 में इसके बारे में दिखाया गया था। और आदमियों के लिए भी इस तरह का एक होता है जिसमें उनकी लिंग में एक धागे की तरह कुछ डाला जाता है। जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो धागा ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल योग है, पर आपके ज्ञान और जानकारी के लिए बता रही हूँ। धागा ऊपर चढ़ जाता है और वो कहाँ से निकलता है मुझे नहीं पता, और कैसे क्या होता है मुझे नहीं पता आगे, पर ऐसा एक योग है। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जब हम कामुकता की पा का फोन आ गया। पा, मैं जरा वो लिविंग द लॉ ऑफ वन का चैप्टर खत्म करके मैं लिंक बनाती हूँ। वाओ, 1 सेकेंड, रुको रुको रुको, मैं जरा इसको पॉज करूं। ओके, लेट अस कंटिन्यू। कहाँ थी मैम? हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जब हम कामुकता की ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो हम अपने भीतर अत्यधिक शक्तिशाली शक्तियों से निपट रहे हैं। हम अत्यधिक कामुक प्राणी हैं, ऐसा भगवान ने बनाया है। यौन इच्छा हमारे मानव स्वभाव का मूल आधार है, चाहे हम इससे खुश हों या नहीं। हमारे सेक्स ड्राइव जीवन भर हमारे विचारों और भावनाओं को बार बार रंग और आग से भर देगी। इस लाल रंग और आग से, इस अग्नि से, ज्वाला से। इस मूल ऊर्जा को वासना कहना आसान है, एक स्तर पर सही भी है। हालांकि जब हम शब्द वासना का उपयोग करते हैं तो हम आमतौर पर इसका इरादा निर्णात्मक रूप से कर रहे हैं, और विशुद्ध रूप से लाल किरण कामुकता की इस चर्चा में हम
विशेष रूप से किसी भी निर्णय का आह्वान करने का इरादा नहीं रखते हैं। इस बुनियादी स्तर पर हम इच्छा की भावनाओं के पीछे के भावनात्मक दृष्टिकोण को नहीं देख रहे हैं। हम बस इस ऊर्जा को देख रहे हैं क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, और जैसा कि यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, हमें बाइबल में बताया गया है, निर्माता ने सिस्टम की जांच की और पाया कि वह शुद्ध और पवित्र है। वास्तव में वह सर्वोत्तम प्रकार का से अच्छा है, यह पवित्र है, एक एकाकृत में सृष्टि सभी चीजें पवित्र हैं। यौन ऊर्जा अपने आप में पवित्र है। हम इंसान होने के नाते आमतौर पर उस पवित्र पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, या कम से कम समय समय पर इसके आसपास काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसकी पवित्रता को दूर नहीं कर सकते। हमारे शरीर पवित्र हैं और उनमें मौजूद यौन ऊर्जा भी पवित्र है। निश्चल प्रेम से बनी रचना में यह पवित्रता प्रेम का स्वरूप रखती है। हम अपने शरीर में उस ऊर्जा को धारण करने वाले लोगों के रूप में यह याद रखने की क्षमता रखते हैं कि यह ऊर्जा पवित्र है, और इसका सम्मान करने के लिए हमारे वास्तविक अनुभव में सेक्स को पवित्र बनाने की क्षमता स्वयं में उस पवित्रता को याद रखने और उसका सम्मान करने से सक्रिय होती है। सेक्स आनंद और उपचार का एक स्रोत है जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के काम करने के तरीके और सबसे बुनियादी स्तरों पर हमारे सांसारिक अनुभव में अंतर्निहित है। अच्छा महसूस करने का इतना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और अंतर्निहित स्रोत शामिल करने वाला कितना उदार रचनाकार है। यौन क्रीड़ा अपनी अंतरंगता और ऊर्जा के मुक्त आदान प्रदान के साथ वास्तव में एक उपहार है। पुराने गीत को संक्षेप में कहें तो इस ग्रह पर जीवन की सबसे अच्छी और सबसे मजेदार चीजें मुफ्त हैं। पहली नजर में एक ऐसा लगेगा कि यह हमारी कामुकता का सम्मान और आदर करने के लिए पर्याप्त कारण है। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हम अक्सर अपनी कामुकता को लेकर तनावग्रस्त और असहज महसूस करते हैं। जानवर तो नहीं करते, वो तो हजारों लोगों के सामने बीच में भी कर लेंगे। वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, ना उनको शर्म आती है, ना उनको कोई, और ना वो बार बार करते हैं। उनको जब कभी तो महीने 6 महीने साल में एक बार जब उनको बच्चा पैदा करने वाली ऊर्जा जागती है तब करते हैं। एक फीमेल मतलब कुतिया जब उसका बच्चा पैदा करने का टाइम आएगा और जब वो उस दौर से गुजर रही होगी तो उसको सूंघ के दूर से कुत्तों को पता चल जाता है कि ये जो है ये इसके अंदर की वो ज्वाला धधक रही है, तब वो उसके साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन कुत्तों और जानवरों के फार्म जहां पर ये पैदा किए जाते हैं और बेचे जाते हैं, वहां पर उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है, उनको मशीनों से बांध के। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर कुत्ता लेना है तो इन फार्म्स, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो भी, इन फार्म्स से मत लो। जिसका नेचुरली हुआ है ना वहां से लो। इन लोगों के साथ वहां पर बहुत अन्याय होता है, आप सोच भी नहीं सकते। रेप होता है, रेप। और फिर भी जैसा कि कुओं कहते हैं, हमारी कामुकता पृथ्वी और स्वयं की मिट्टी है। यह हमारी जड़ें और हमारी शुरुआत है। हम सभी की कल्पना सृष्टिकर्ता द्वारा उस बीज को जीवन प्रदान करने के परिणाम स्वरूप हुई थी जो हमारे पिताओं ने हमारी माताओं के गर्भ में बोया था। जब हम ये कहते हैं कि रचनाकार हमारे द्वारा अपनी रचना का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि रचनाकार मेरे अंदर है, मेरा मन कर रहा है सेक्स इसके साथ अनुभव करने का, तो इसकी इच्छा हो या ना हो मैं रेप करूंगा। वो रचनाकार नहीं है, वो लहसुन प्याज है, वो शैतान है जो आपके अंदर इस तरह की जो भावनाएं हैं वो जगा रहा है। जब रचनाकार की इच्छा होगी तो वो इच्छा प्रेम में लस होगी, बिल्कुल प्रेम से भरी हुई होगी, जबरदस्ती नहीं करेगी। और उसको
संभोग नहीं भी मिलेगा तो भी उसको जब साथ मिलेगा, किसी का प्रेम मिलेगा, तो वो उसमें खुश रहेगी। हमारा अस्तित्व लाल किरण केंद्र के प्राकृतिक कार्य पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। हमें अपनी कामुकता के साथ शांति खोजने की जरूरत है। लाल किरण चक्र के साथ सख्ती से काम करने वाले खिलाड़ियों के रूप में हमारी कामुकता से निपटने में हमारा लक्ष्य, हम कैसे देखते हैं या कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हमारी सभी चिंताओं को दूर करना है। कोई अन्य चिंता जो ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव को बाधित करती है लाल किरण के माध्यम से, इसके बजाय हमें अपनी कामुकता के उपहार का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक खिलाड़ी के रूप में हमें रेड रे केंद्रों को खुला रखने और अच्छी तरह से प्रवाहित होने के मामले में सरल, आनंदमय, उत्साह, ब्रियो, चंचलता, ब्रियो पता नहीं क्या है, ब्रायो, एंड हमारी कामुकता के ईमानदार आनंद के साथ रहना हमारी चिंता है। मतलब चिंता है नहीं, मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा काम होना चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें और भरोसा रखें ईश्वर पर। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और सहज रहते हैं, तो उसमें हमारी मूलाधार चक्र जो है वो उसका रंग खिलता है। ऐसा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर है। इसके कई कारण होंगे, यह बाद में स्पष्ट होगा जब हम नारंगी किरण चक्र की नारंगी किरण चक्र की कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आइए हम बस यह कहें कि खिलाड़ियों के रूप में हम यौन प्राणी के रूप में खुद के संबंध में वास्तव में आरामदायक और सकारात्मक शांति में आना चाहते हैं। खिलाड़ियों के रूप में हम अपनी कामुकता के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ऊर्जा के उस बहुमूल्य प्रवाह को चालू रखना है। बस उस यौन ऊर्जाओं को खतरा महसूस होता है तो हम अपनी हाँ खो देते हैं। हम अपनी हाँ मतलब हमारी वो इच्छा और हमारी कामुकता खो देते हैं। यदि हम यौन संबंधों के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो हम अपने ऊर्जा निकायों के माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवाह को बंद करके यौन उत्तेजनाओं पर आसानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्राणी ऐसा हमारे बंद करके यौन प्राणी उत्तेजनाओं पर आसानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अगर हम अपनी कामुकता और अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे। ऐसा न करना प्राथमिकता है। ऐसा न करना यह जरूरी है कि आप अपनी कामुकता और अपने बारे में बुरा ना सोचें, खुद से प्यार करें, अपनी कामुकता में सहज रहें। अब है तो है, भगवान ने बनाया है। अगर वो इतना बुरा होता तो भगवान बनाता क्यों? उन्होंने नहीं किया, उनके माँ बाप ने नहीं, कृष्ण के माँ बाप ने नहीं किया। मतलब हाँ, हिंदू कहानियों में, यहां तक कि बाइबल में भी वर्जिन मैरी है। पर उस जमाने में उन लोगों को के पास ये शक्तियां थी कि वो बच्चों को सोच से पैदा कर सकते थे। लेकिन शादी तो कृष्ण ने भी की थी, प्रेम तो राधा ने भी किया था, कामुकता नहीं की। वो की कि नहीं मुझे नहीं पता, प्रेम तो किया ना, साथ में समय तो बिताया। और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को इन चीजों से दूर रखने के लिए भी हो सकता है बनाई गई हो, किसे पता। सत्य क्या है ये तो कृष्ण उतरे तो बताए या शिव उतरे तो बताए। लेकिन शिव और पार्वती ने किया, उन्होंने ये किया है। विष्णु लक्ष्मी ने भी किया है, ब्रह्मा सरस्वती ने भी किया है। उसके मुझे याद है जब मैं जागेश्वर गई थी, जागेश्वर बागेश्वर, तो वहां की मंदिरों की सारी मूर्तियों को इन लोगों ने गायब कर रखा है। उन मूर्तियों को टूटा फूटा, काफी उनके हिस्से टूटे हुए हैं, इन लोगों ने एक म्यूजियम में रखा हुआ है।
और उस म्यूजियम में आप कहीं भी देख लें, आ, शिव का हाथ पार्वती के स्तन पर है। सूर्य की मूर्ति है, सूर्य देव का मंदिर था, सूर्य की मूर्ति है बहुत बड़ी। और जितनी मूर्तियां हैं शिव पार्वती की, यहां तक कि वहां पर एक अर्धनारीश्वर का पेड़ और मंदिर भी है, वहां की मूर्ति भी उठा के यहां रखी हुई है। तो आप देख लीजिए, कामुकता में जब उन्होंने, अब वो लोगों को जब तक तंत्र समझ में नहीं आता और कामुकता और संभोग में समझ नहीं आता, और लस्ट को क्या बोलते हैं, गंदा वाला जो सोच आती है ना दिमाग में, उसमें और पवित्र प्रेम में, पवित्र कामुकता में फर्क समझ नहीं आता, तब तक लोगों को समझाना मुश्किल है। आज का सेशन लंबा हुआ, लेकिन दो बनाने का कोई अर्थ नहीं था। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑन मंडे। गुड बाय।